Hello, am I audible? Hello, 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 hello. Ajay, am I audible? Ajay, Ajay. Yes, sir. Yes. Okay, okay, okay. Just wait. So, good morning to all of you. Today is Manoj sir class, but he is absent. So, uh, in place of his, I am doing his class. Just a minute, just a minute. Just wait. Now, uh, we are studying the basic concepts of quantum theory. That is chapter 1. In chapter 1 हम लोग चैप्टर 1 को आज हम लोग पढ़ाया जाएगा. हम अपने तरफ से पढ़ा रहे हैं. मनोज सर चूंकि नहीं है, इसलिए उनके जगह जो है अभी हम ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी उसको हम लोग पढ़ेंगे. ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी. आवाज जा रही है? हेलो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें देखो ये पार्ट जैसे ही सिलेबस हम तो भेज चुके हैं. सिलेबस में देखना ये दिया हुआ है, inadequacy of classical mechanics. inadequacy स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में. इस पार्ट को थोड़ा सा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. ठीक है. इस अच्छा, इसमें लगातार अभी से लेकर के 1040 तक एक लिंक गया है. इसके बाद 1040 टू 1130 उसका हम अलग से लिंक भेजेंगे. ठीक है. इस क्लास के बाद फिर और एक क्लास होगा. सो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर, क्लासिकल मैकेनिक्स एक्चुअली फॉलो द न्यूटन्स 3 लॉज. क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब पार्ट आया है, या डायनेमिक्स जो पार्ट हम लोग पढ़े हुए हैं उसके बारे में बोल रहे हैं. वो क्लासिकल मैकेनिक्स का एक पार्ट है. तो सो इन क्लासिकल मैकेनिक्स actually depends upon Newton's 3 laws. That is the law of inertia, or it may be known as Galileo law, the law of force, and third is the law of action and reaction. तीन लॉ पर जो है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स ये डिपेंड कर रहा है. फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो लॉ जिसको बोल रहे हैं, लॉ ऑफ फोर्स
लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। और ये तीनों लॉ, ये तीनों लॉ, all the three laws that gives the concepts of absolute mass, space and time. तीनों लॉ, mass, just minute, 4 candidates they are entering. Mass, absolute space and absolute time, इसके बारे में जो है ये हमारा तीनों लॉ इस चीज को डिस्क्राइब करता है। तो इन दिस इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आर, कुछ कुछ पॉइंट है। इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स डिपेंड्स अपॉन द classical mechanics depends upon the Newton's three law, that is law of inertia, Galileo law, the law of force, the law of reaction and reaction, and all these laws gives the basic concept of mass, absolute mass, space and absolute time. So according to this we can say that inadequacy of classical mechanics are, it does not hold in the region of atomic dimension. It does not hold in the region of atomic dimension. It means it cannot explain the non-relativistic motion of atoms, electrons, protons, etc. माने ये हमारा एटॉमिक डायमेंशन का रीजन में नहीं रहता है। मीन्स ये मोशन ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इसका जो है नॉन रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक दो पार्ट आता है, जिसमें नॉन रिलेटिविस्टिक को एक्सप्लेन नहीं करता है। इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जो है ये नहीं बोलता है, एक्सप्लेन नहीं करता है। स्टेबिलिटी, इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इट could not explain the observed variation of specific heat of metals and gases. हर एक एरिया में ये कवर कर रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल और गैस का जो वेरिएशन है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। और it could not explain the origin of discrete spectra of atoms. According to classical mechanics, we can say the energy changes always remains constant. Energy changes always remains constant. तो कौन सा पॉइंट हुआ? inadequacy of classical mechanics are, first is the, it does not hold in the region of atomic dimension. It cannot, inadequacy of classical mechanics cannot explain the stability of atom. Inadequacy of classical mechanics cannot explain the spectrum of black body radiation. Fourth, it cannot explain the variation of specific heat of metals and gases. And last point is, it could not explain the origin of discrete spectra of atoms. It means सर हाँ सर ऊपर के जो नहीं दिख रहा पॉइंट सब बाकी दिखाएंगे पॉइंट हम दिखा रहे हैं, पहले हमको बोलने दो, ठीक है? पहले हमको बोलने दो। चारों पॉइंट हम दिखा रहे हैं, पांचों पॉइंट, और इस पांचों पॉइंट को रटना होगा, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है? ये सिर्फ समझने से, ये पार्ट अभी नहीं समझ सकते। देखो ये पार्ट जो बोल रहे हैं, ये एटॉमिक डायमेंशन को जो है का रीजन में नहीं रह रहा है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, it could not explain the black body radiation, and it could not explain the variation of specific heat of metals and gases.
इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डिस्क्रिएट स्पेक्ट्रा, जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हैं, और पैटर्न्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस means inadequacy of classical mechanics lead to development of quantum mechanics. कहां से आया क्वांटम मैकेनिक्स? तो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का जो इनएडिक्वेसी पार्ट है वहां से डेवलप किया क्वांटम मैकेनिक्स. इस पार्ट को पहले याद करोगे आज क्लास के बाद. ये चारों पांचों पॉइंट को याद करना है. नेक्स्ट जो है वो है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन. स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको समझना है. इसको डेवलप कौन किया था? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन. यहां देखो हम लोग लिख रहे हैं, ये पॉइंट सी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. जस्ट ए मिनट, कुछ कैंडिडेट आ रहे हैं, इन कर रहे हैं. ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसको डेवलप किया था ल्यूमर एंड प्रिंगसेम. both are the scientists and they can develop the distribution of energy among the radiation emitted by a black body at with different temperature. अलग अलग टेम्परेचर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कोई ब्लैक बॉडी में हो रहा है, उसके बारे में ल्यूमर और प्रिग्नेंसेम ने इस पार्ट को डिस्क्राइब किया. इस पार्ट के आधार पर उनका कहना है S1 and S2 are the two slits. S2 is known as bolometer. Here M1 and M2 are the two reflector. In between these two reflector there is a prism. ये प्रिज्म है ABC. ये हमारा प्रिज्म है. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि M1 और M2, M1 and M2 are the reflector, and this M2 reflector means it is concave mirror. S1 and S2 are the slits. S2 slit is known as bolometer. In between these two reflectors, M1 and M2, there is a prism. ABC has to be kept. Now, the reflections स्टार्ट कर रहे हैं. अब इसको कंस्ट्रक्शन पार्ट कौन क्या है बता दिए. अब द रेडिएशंस फ्रॉम द ब्लैक बॉडी रेडिएशन passes through the slit S1 and fall on the reflector M1. The radiations from the black body passes through the slit S1 and पास कर रहा देखो, और कहां पर ये फॉल किया? रिफ्लेक्टर M1 पर. आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड हो रहा है. द पैरेलल बीम, ये पैरेलल बीम ऑफ रेडिएशंस फॉल ऑन ए प्रिज्म. तो कौन सा प्रिज्म है? ये रॉक सॉल्ट से बना है और इट मे बी नोन एज फ्लोरोस्पार. रॉक सॉल्ट या फ्लोरोस्पार से ये प्रिज्म ABC बना हुआ है. तो सो द रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल बीम ऑफ रेडिएशन fall on this prism ABC which is placed on the turntable. ये turntable पर है, घूमेगा. देखो ये डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं सर्किल में. turntable of the spectrometer. So the emergent light is focused by the reflector. ये रिफ्लेक्टर है M2, कॉन्केव मिरर है. रिफ्लेक्टर M2 on a line bolometer. ये bolometer is connected. This bolometer is connected with a galvanometer.
So the turntable, this turntable, the turntable is rotated slowly, so that different parts of the radiations among this uh, prism spectrum successfully fall on the bolometer, and corresponding deflections in the galvanometer, यहाँ से galvanometer connect है, connected with the bolometer circuit are read. galvanometer से हम लोग read कर रहे हैं रीडिंग को सर्किट का. So intensity of each line, यहाँ से जो हमारा इंटेंसिटी है, so the intensity of each line E, intensity E of each line is proportional to the deflection in the galvanometer. जब हमारा रेडिएशन फॉल हो रहा है बॉलोमीटर पर, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हुआ connected in the bolometer, this bolometer, so intensity of each line is proportional to deflection in the galvanometer. galvanometer में जो deflection हो रहा है, then a curve, just a minute, then a curve is drawn between intensity and wavelength. Then a curve is drawn between intensity and wavelength. ये देखो, the body is heated with different temperature and curves are drawn with various temperatures. फिर से इस पार्ट को एक बार बोल रहे हैं. The radiations from the black body passes through the slit S1 and fall on the reflector M1. After being reflected, the parallel beam of radiations fall on a prism ABC, which is made up of rock salt or fluorospar, and this prism is kept on the turntable of the spectrometer. Turntable में ये सर्किल होगा, घूमेगा turntable. The emergent light, this emergent light is focused by the reflector M2 on a bolometer placed behind the slit S2, this slit S2. This bolometer is connected with a galvanometer. So after this, the turntable is rotated, घुमा रहे हैं इसको slowly, so that different parts of the radiations spectrum successfully fall on the bolometer, and corresponding deflection in the galvanometer. Suppose here a galvanometer is connected, then in that case we have note the deflection in the galvanometer connected with the bolometer circuit, and reading to be noted. So the intensity of each line is proportional to the deflection in the galvanometer. Intensity of each line E is proportional to the deflection in the galvanometer. Then a curve is drawn between intensity and the wavelength. Intensity and the wavelength. Wavelength is written in the in the x-axis, and intensity is in the y-axis. The body is heated with different temperature, and curves, these are the curves, are drawn with different temperature. So this curve indicates that energy is not uniformly distributed in the radiation spectrum of a black body. At a second point, first point is the energy is not uniformly distributed in the radiation spectrum of a black body. Second point, at a given temperature, intensity of radiation increases. देखो, in each case the intensity of radiation increases with increase of wavelength and becomes maximum. Means here all these three points,
and is maximum, being maximum at a particular wavelength, maximum at a particular wavelength, by again increasing the wavelength, intensity of heat radiations decreases like this. थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि कोई एक निश्चित टेम्परेचर पर, दिया हुआ टेम्परेचर पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। एक समय ऐसा आता है जब इंटेंसिटी मेरा रीचिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट, अगेन द वेवलेंथ इंक्रीजेज, फिर से अगर हम लोग वेवलेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन डिक्रीजेज, इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन डिक्रीजेज। पहले में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है। एक समय के बाद वेवलेंथ मेरा हाईएस्ट पॉइंट पर आया। आफ्टर दैट व्हेन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ इंटेंसिटी विल डिक्रीज। इस डायग्राम के आधार पर बोल रहे हैं। सो थर्ड केस, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर causes a decrease in wavelength. Increase in temperature causes a decrease in wavelength such that lambda t equal to constant. ये बात lambda t equal to constant और उसका वैल्यू दिया हुआ है इतना, where lambda is the wavelength for which the energy emitted is maximum. Energy emitted is maximum, lambda m, maximum energy. ये पॉइंट, इस पॉइंट। Again, an increase in temperature causes an increase in energy emission. जब इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, वो क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन एनर्जी इमिशन फॉर ऑल वेवलेंथ्स। जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज इन एनर्जी इमिशन फॉर ऑल वेवलेंथ्स, हर एक वेवलेंथ के लिए। So the area under each curve, इस कर्व का एरिया represents the total energy emitted by the body, at a particular temperature for the range of the wavelength. अगर if this area increases with increase of टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट इज फाउंड दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये पार्ट विच इज नोन एज स्टीफेंस लॉ। इस पार्ट को पूरा लिखना होगा। स्टीफेंस लॉ, फिर से इसको बोल रहे हैं, पूछता है ये एग्जाम में। स्पेक्ट्रल, फर्स्ट मिनट, जस्ट ए मिनट, ये अनंत आवाज जा रही है? यस सर। सभी को नोट्स मिल गया था 16th, 17th, 18th का? यस सर। अच्छा ठीक है, आपसे इसी तरह नोट्स भेज देंगे सेम डे, ठीक है। नोट्स को मिलने के बाद याद करोगे। आज हम मनोज सर का जो है क्वांटम मैकेनिक्स जो पढ़ाते हैं, जो कि चैप्टर 1 है, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो ये सब चीज जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब हम क्वांटम मैकेनिक्स जो सबसे हार्ड है फिजिक्स में, ठीक है, इसको हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, स्पेक्ट्रल फर्स्ट पेज। हाँ हेलो, फर्स्ट पेज सर थोड़ा बता दीजिएगा।
ठीक है ठीक है ठीक है। इस पार्ट को याद करना है, रटना होगा थोड़ा। इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो है हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। लॉ ऑफ, पुराना सिलेबस में ये सब पार्ट पूरा दिया हुआ था क्लासिकल मैकेनिक्स। डायनामिक्स का पार्ट पूरा दिया हुआ था। सो क्लासिकल मैकेनिक्स डिपेंड्स अपॉन द न्यूटन्स 3 laws. First law is law of inertia, second law of force, third law of action and reaction. ये तीनों लॉ पर क्लासिकल मैकेनिक्स डिपेंड कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ gives the concepts about absolute mass, absolute space and absolute time. With these 3 laws gives the idea about absolute mass, absolute space and absolute time. So according to this, inadequacy of classical mechanics are indicates that it does not hold in the region of atomic dimension. ये एटॉमिक डायमेंशन का रीजन में नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है कि एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो रिलेटिविस्टिक मोशन में रहता है उसके बारे में ये डिस्कस नहीं कर पाता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम हम लोग किसमें बोल रहे हैं? लेजर में। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वहां हमारा स्टेबल हो रहा है एटम। इसमें क्या बोल रहा है कि इट डज नॉट, माने क्लासिकल मैकेनिक्स, इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स। थर्ड क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट कवर द ऑब्जर्व वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड गैसेस। और लास्ट पॉइंट है, ये नहीं बता पा रहा है ओरिजिन ऑफ डिस्क्रिएट स्पेक्ट्रा ऑफ एटम को। क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बता पा रहा है। सो नहीं बताने के चलते दूसरा एक मैकेनिक्स डेवलप हुआ जिसको बोल रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स गिव्स और एक्सप्लेन ऑल दीज 5 केसेस क्लासिकल मैकेनिक्स। इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ जो ये 5 केस को डेवलप किया, बताया, एक्सप्लेन किया। इसके चलते अब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, अब पता चला क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों आ गए। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में ये 5 पॉइंट्स जो है कवर नहीं हो पा रहा है। These 5 points A, B, C, D, E. That's why we have read quantum mechanics. तो क्वांटम मैकेनिक्स अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये 5 पॉइंट को क्लियर करने के लिए। In quantum mechanics, first is the spectral distribution in black body radiation. So black body radiation, it was first discovered by Luhmer and Pringsum scientist. ये दोनों साइंटिस्ट था, Luhmer and Pringsum gives the concepts of and explain the black body radiation, which state that distribution of energy among the radiation emitted by a black body, radiation emitted by a black body at different temperature, with different temperature से हमारा ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रहा है और उसके चलते जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको जो है ल्यूमर और प्रिंगसम ये उसके बारे में एक्सप्लेन किया। जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, यस अनिकेत राज। सर व्हाट इज ब्लैक बॉडी? सर नहीं समझे सर, ब्लैक बॉडी क्या होता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ब्लैक बॉडी क्या है सर?
ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर अनिकेत, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आएगा इसके बाद, प्लैंक कांस्टेंट ठीक है पढ़ेंगे सर तब, ठीक है? अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हम क्या बोल रहे हैं? S1 and S2 are the two slits, M1 and M2 are the two reflector. A bolometer is connected in the slit S2, and with this bolometer there is a galvanometer. Sensitive galvanometer is attached with this bolometer. In between these two reflector M1 and M2, there is a prism which is made up of rock salt or fluorospar. This prism is made up of rock salt or fluorospar which is placed in a turntable. टर्नटेबल के ऊपर ये हमारा ये प्रिज्म रखा हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन है। अब बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन, द रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी passes through this slit S1 and fall on the reflector M1. After ये fall किया reflector M1 पर, after being reflected, the parallel beam, ये parallel beam of radiations fall on a prism ABC placed on the turntable of the spectrometer. The emergent light here, these are the emergent light, is focused by the reflector M2 on a concave mirror on a line bolometer placed behind this slit S2. The bolometer is connected with a galvanometer. Again, the turntable is rotated slowly so that different parts of the radiation spectrum fall on the bolometer, and then the corresponding deflections in the galvanometer are shown, and that deflection we can read. The intensity of each line is proportional to the deflection in the galvanometer. The intensity is proportional to the deflection in galvanometer. Then a curve is drawn. ये हाँ निकेत बोलो। सर M1 M2 दोनों कॉन्केव मिरर है सर। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है। हाँ ये दोनों कॉन्केव है। और बोलोमीटर क्या होता है सर? बोलोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारा गैल्वेनोमीटर है उसी तरह बोलोमीटर। वो तो करंट नापता है, गैल्वेनोमीटर करंट नापता है सर। देख लेंगे हम, उसके बाद बताते हैं, ठीक है? बोलोमीटर का देख लेंगे। यस सर। ठीक है सर, गैल्वेनोमीटर का कहाँ यूज है सर इसमें? यहाँ पर, यहाँ तो करंट आ ही नहीं रहा ना सर। कनेक्ट रहेगा बोलोमीटर के साथ। बोलोमीटर के साथ सर मेरा ध्यान दो, इधर कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, ठीक है? सर डिटेक्ट क्या करेगा सर गैल्वेनोमीटर? ये गैल्वेनोमीटर सर, क्या गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है? गैल्वेनोमीटर करंट, पोटेंशियल सर। तुम लोग को ये भी नहीं मालूम है गैल्वेनोमीटर? वोल्टेज सर वोल्टेज। फिर जब तुम लोग जान रहे हो कि गैल्वेनोमीटर जो है यहाँ बोलोमीटर से मेरा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये बोलोमीटर से गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया हुआ है, ये थोड़ा हम नेट में सर्च करके देखेंगे। यहाँ क्यों, ये मेरा भी माइंड में आ रहा है कि बोलोमीटर से डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को क्यों जोड़ा गया है। स्लिट के बाद बोलोमीटर यहाँ लगा हुआ है, बोलोमीटर से गैल्वेनोमीटर को क्यों यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है ना? क्या फंक्शन है दोनों का डायरेक्टली, थोड़ा इसको देख के फिर कल का क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज तो अभी देखेंगे, सेकंड हाफ में क्लास नहीं है। और सर ब्लैक बॉडी कहाँ पर है सर? ब्लैक बॉडी यहाँ S1 के, यहाँ पर S1 से पहले क्रसर को ध्यान दो, यहाँ ब्लैक बॉडी हम शो नहीं किए हैं, यहाँ ब्लैक बॉडी है, यहाँ से मेरा रेडिएशन आ रहा है, ये रेडिएशन S1 स्लिट होते हुए पार हुआ, तब M1 पर ये फॉल किया।
ठीक है, यस सर। ठीक। ब्लैक बॉडी से रेडिएशन आता है सर? हाँ, इसके बाद जब हम लोग प्लैंक कांस्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्लैंक कांस्टेंट के बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पूरा डिटेल्स बताया जाएगा, ठीक है। ओके सर। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग इनिशियल फेज है ना। तो इनिशियल फेज में ही तुम सब कुछ पहले स्टेप बाय स्टेप जाओ, धीरे धीरे करके, ठीक है। तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मान लो इस चीज को अगर हम नहीं डिस्क्राइब करेंगे ना, तो अगला जो प्लैंक के बारे में हम लोग को, प्लैंक कांस्टेंट जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करना रहता है ना, वो सब चीज हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसे होगा। इसीलिए पहले इस पार्ट को बता रहे हैं। नया चीज सुन रहे थे ना सर, इसीलिए थोड़ा सा ये लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, वो माइंड में तो क्वेश्चन आएगा ही। यस सर। ठीक है, इस डायग्राम के आधार पर अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, जैसे जैसे हम क्या बोल रहे हैं, द इंटेंसिटी। अनिकेत कुछ बोलना चाहते हो? अनिकेत राज? नहीं सर, वो हाथ नीचे कर अच्छा रहे थे ठीक है, सर। ठीक है, चलो। तो हम लोग कर्व किसके किसके बीच में ड्रॉन कर रहे हैं? इंटेंसिटी और वेवलेंथ। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में हम लोग कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। जब बॉडी को हीट कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर से, तो ये कर्व मेरा क्रिएट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, इसके बाद फिर एक लिंक जाएगा, याद रखना। अकॉर्डिंग टू दिस कर्व वी कैन से द एनर्जी इज not uniformly distributed in the radiation of a black body at a given temperature. Intensity radiation increases, देखो ये इंक्रीज कर रहा है with increase of wavelength। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी मेरा बढ़ रहा है, एंड इट बिकम्स मैक्सिमम। यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है ये पॉइंट में, एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ, निश्चित वेवलेंथ में। यहाँ पर मेरा मैक्सिमम आया, इस पॉइंट पर मैक्सिमम। इस पॉइंट में जब हमारा λ1 यहाँ पर था वेवलेंथ, तो मैक्सिमम इस पॉइंट पर आ रहा है। λ2 वेवलेंथ में यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, λ3 में इस पॉइंट पर आ रहा है। अगेन फर्दर इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, इंटेंसिटी डिक्रीजेज, इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा। तब बोल रहे हैं एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज ए डिक्रीज इन वेवलेंथ। इस केस में where this lambda m is the wavelength. Again, the increase in temperature causes in energy emission. Increase in temperature causes an increasing in emission, energy emission for all wavelengths. And last, the area under which curve represents, ये area, the area under curve represents the total energy emitted by the body at a particular temperature for the range of the wavelength. अब स्टीफेंस लॉ कैसे आया? एरिया का बात किए, जब एरिया इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किए तो एरिया इंक्रीज किया। एरिया को देखो तो ये एरिया बढ़ रहा ना, पहले यहाँ कम था टेम्परेचर T1 में, T2 में ज्यादा एरिया लिया, T3 में ज्यादा एरिया लिया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए एरिया बढ़ते गया। अब बोला जा रहा है इट इज फाउंड दैट दिस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज नोन एज स्टीफेंस लॉ। इसका मतलब सर किसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सर? पहले हम क्या बोले कि अलग अलग टेम्परेचर पर ले रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर में। देखो यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ ब्लैक बॉडी है ना, यहाँ से मेरा